morning, dear students. Today we are going to discuss more about circles. तो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं इंटरेक्शन ऑफ टू सर्कल्स की, और जब दो सर्कल गिवन है हमें तो हमने बात किया था व्हाट इज द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू गिवन सर्कल्स, एंड वी सॉ दैट द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू गिवन सर्कल इज s1 minus s2 is equal to 0, which is a line if the two circles are not concentric. If two circle becomes concentric, then the radical axis goes at infinity. That is, there is no radical axis if two circles are concentric. In all other cases, the radical axis of two circle is always a straight line. In case the two circles are intersecting each other externally, then the radical axis is the common tangent between those two circles, just like this. This is the radical axis, and when the two circles are intersecting like this, then the radical axis is this, and when two circles are touching internally, then the radical axis is this, and when two circles are like this, one circle is lying inside the other circle, the radical axis is out of the two circles, and when this circle is smaller circle center coincide with the bigger circle center, then the radical axis, no radical axis. In fact, you can understand that this line was going away, and when the center of the two circle coincides, this leaves the plane, this leaves the finite plane, and it goes at infinity. ठीक है ना? तो बच्चों एक और फिर उसके बाद से हमने ये भी डिस्कस किया था बच्चों कि अगर दो सर्कल S1 है, S1 equal to 0 और S2 equal to 0, then S1 plus lambda S2 is equal to 0, lambda is not equal to -1, is a family of circles passing through the intersection of the two circles, S1 equal to 0 and S2 equal to 0. It is very easy to see why it happens so, because if this is a circle and this is another circle which are intersecting at say P and Q point, then you can very clearly see that S1 plus lambda into S2 is equal to 0 is again a circle. This is of the form, you see, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c plus lambda x square plus y square plus 2g dash x plus 2f dash y plus c dash is equal to 0. This is of the form 1 plus lambda x square plus 1 plus lambda y square plus 2g plus 2g dash lambda x plus 2f plus 2f dash lambda y plus c plus lambda c dash is equal to 0. This is nothing but in the form of a circle, because you know a general equation of second degree ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 represents a circle if a is equal to b is not equal to 0, h is equal to 0. So you can see that this is of this form if 1 plus lambda is not equal to 0 or lambda is not equal to -1, then this is nothing but a circle. And this being a circle will satisfy this point, because if you put P here, then this would be 0, because this point P lies on the first circle, and this would also become 0 because it lies on the second circle. So this would become 0 plus lambda into 0, and that is again 0. So therefore, this circle, the third circle, which is obtained by combining the first two circles, is satisfying the point P as well as the point Q, and therefore this is a family of circles passing through the intersection of the points P and Q. You need not find the point of intersection in order to get the equation of the circle passing through these 2 points. This is a simple, very simple way of obtaining that. ठीक है बच्चों, अब यहां से आप ये ध्यान रखो कि लेमडा को आप चेंज करते रहोगे तो आपको सर्कल मिलता रहेगा, अलग अलग सर्कल मिलता रहेगा, क्योंकि 2 पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइटली मेनी सर्कल हो सकते हैं.
तो बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है, तो थोड़ा सा माहौल बना लेते हैं उस तरह का। तो एक छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल which passes through the intersection of circles। और छोटा ही मैं क्वेश्चन लूंगा, x square plus y square is equal to 1 and or you can say you can take 4 and x square plus y square minus 2x plus 4y is equal to 0 and the point let us take 2, 2। तो जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, the equation of let the circle be x square plus y square minus 2x plus 4y plus lambda x square plus y square minus 4 is equal to 0. Put 2, 2. So you'll get 2 square plus 2 square minus 2 into 2 plus 4 into 2 plus lambda 2 square plus 2 square minus 4 is equal to 0। और यहाँ से बच्चों आप लोग कंप्यूटेशन पे ध्यान देते ही हो, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 4 और ये 8 12 हो जाएगा, प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4 lambda is equal to 0। This implies lambda is equal to -3 and now plug in lambda is equal to -3 in स्टार। तो यहां से क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और यहां से जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x minus 2y minus 6 is equal to 0, which is the desired circle। तो ये बच्चों वो सर्कल है जो दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन से पास होता है और एक और गिवन पॉइंट है 2, 2 वहां से भी पास होता है। देख लो आपको मिल गया। कई बार इसका सेंटर और इसका रेडियस भी पूछा जा सकता है आपको। तो इसका सेंटर क्या होगा बच्चों, इसका सेंटर होगा -1/2, 1 एंड रेडियस होगा 1/4 + 1 + 6, ये हो जाएगा। तो with this tiny question let us proceed to more concepts। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज नोन एज पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। बच्चों मैं चाहता हूं कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, मेरी इच्छा है कि आप सभी लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर IIT-JEE में पूछे गए हैं वो उसको अपना एक, देखो लाइफ में गोल होना बहुत जरूरी है। गोल का मतलब, गोल अगर डिसाइडेड है कि हमें भाई इधर कहाँ जाना है, क्या करना है, तभी तो करोगे और तभी तो गोल और आपके बीच का जो गैप होगा वो कम होगा। तो गोल हमको ये बनाना है। और देखो बच्चों मतलब हमारे आसपास करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा क्या है, ये तो एक वैलिड क्वेश्चन है ना कि हमें अपना समय किस तरह के क्वेश्चंस पे खर्च करना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द बेस्ट क्वेश्चंस। और हमेशा देखो, हमेशा थोड़ा सा लेवल, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने से जो बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो वैसे ही क्लियर हो जाते हैं। अब जैसे कि मान लो अगर आप NDA के पेपर्स को उठा लो, 14 सालों के पेपर को उठा लो या 10 साल के पेपर को उठा लो और उसको करते हो अगर आप, ठीक है ना, तो आप एक बहुत लेवल को अचीव कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप IIT-JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हो तो इससे आपका बहुत सारा काम हो जाता है। NDA तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, KBPY की भी तैयारी हो जाएगी,
और भी जितने एग्जाम्स बिट्स होते हैं और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं उनकी भी तैयारी हो जाएगी। तो थोड़ा सा लेवल, अब बिगिनिंग में क्या कर सकते हैं, बिगिनिंग में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि बेसिक क्वेश्चन करो, इजी क्वेश्चन करो, जिससे कि आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाए। किसी भी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो ना, तो चाहिए मोटिवेशन, चाहिए एनर्जी। तो उस एनर्जी को लाने के लिए बेसिक क्वेश्चन करो, एंड वेन एवर यू फील लो ऑफ एनर्जी यू स्टार्ट डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स, इजी क्वेश्चन। बट इसको गोल मत बनाओ आप कि सिर्फ बेसिक क्वेश्चन को ही और छोटे छोटे क्वेश्चंस को ही करना है और हमेशा यही करना है। आप थोड़े से और जो हाई लेवल के क्वेश्चन है, जैसे कि आईआईटी मेंस के क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन है, उनको जरूर करो और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। और जैसे ये सर्कल है, मैंने आपको बताया था कि सर्कल में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और टॉपिक वाइज भी उसमें डिवाइड किया हुआ है। उसमें जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन, दो सर्कल वाले क्वेश्चन, पोलर वाले क्वेश्चन, उन सब क्वेश्चंस को करो। बहुत आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, खुद से करो, ठीक है ना। करने के बाद से फिर आंसर देख लो और फिर अगर नहीं होता है 2-3 बार ट्राई करो। अगर आपका आंसर मैच कर जाता है तो हैप्पी हो जाओगे। और 2-3 बार करने के बाद नहीं हो पा रहा है, तब अगर नहीं हो पा रहा है तब आंसर देखो या सॉल्यूशन देखो या मुझसे पूछो। बिल्कुल क्वेश्चन आपने करना शुरू किया और नहीं हो रहा है और तुरंत सॉल्यूशन देख लिया, ये अच्छी हैबिट नहीं होती है। थोड़ा इफर्ट जरूर लगाना चाहिए। तो जो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात हम लोग कर रहे थे, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? देखो, हमने बात किया था लाइन में जो है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन की बात की थी। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल की बात कर रहे हैं। तो सपोज ये सर्कल है, तो इस सर्कल में जो है मान लो इसका सेंटर जो है हमारा x नॉट y नॉट है और रेडियस r है, ठीक है ना। इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन को निकालना है। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, देखो सारी चीजें कनेक्टेड हैं, बिल्कुल कनेक्शन है, बहुत डीप कनेक्शन है बच्चों। देखो ये सर्कल है, देखो कैसे ट्रिग्नोमेट्री, पूरी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे आ जाएगी। जो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस है, जहां से ट्रिग्नोमेट्री निकला है, वो सारा यहाँ पे आने वाला है। देखो ये मान लो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और यूनिट सर्कल, a unit circle. Trigonometry is all about unit circle, and that's why trigonometrical functions are called circular functions. और आप किसी भी एग्जाम को ले लोगे, इस बार आईडीजे एग्जाम को ले लो, देखो कितनी जगह साइन थीटा कॉस थीटा साइन एक्स कॉस एक्स दिखता है। यू विल सी दीज फंक्शंस स्प्रेड ओवर द इंटायर पेपर, ऑलमोस्ट इंटायर पेपर। तो इन पे बहुत अच्छा कमांड बनाओ, रट्टे नहीं। तो बच्चों ये जो है, इस सर्कल पे जो कोई भी पॉइंट होता था, हमने देखा था कि वो होता है cos theta comma sin theta, and this angle theta, this is the angle theta in angle in radian, theta radian। तो यहाँ पे क्या हो गया, x is equal to cos theta है और y is equal to sin theta है, because any point lying on this circle will be of this form। तो बच्चों अब अगर सिंपली आपको दे दिया जाए x is equal to cos theta and y is equal to sin theta, तो यहां से भी आप बोल सकते हो कि this is nothing but the point x and y are lying on a circle, so this is known as the parametric equation of the circle। समझ में आ रही बात? यहाँ पे अगर सर्कल का सेंटर मान लो जो है कोई जनरल सेंटर है, मान लो ये आपका एक जनरल सर्कल है जिसका सेंटर एक्स नॉट वाई नॉट है, तो बच्चों यहाँ पे भी क्या होगा, देखो एक्स नॉट वाई नॉट, ये मान लो कोई पॉइंट है पी एक्स कम वाई। तो यहां से एक आप ऐसे ऐसे ड्रा कर लो। अब बच्चों देखो, ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये ऐसे देखो, ये यहां तक तो हमारा ये एक्स नॉट है, और ये हमारा जो है एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट, और ये बच्चों थीटा है और ये आर है, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा और ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो यहां से क्या मिलेगा, एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू आर साइन थीटा। और यहां से आप देख सकते हो कि एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो देयरफॉर द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल इज
circle x minus x naught whole square plus y minus y naught whole square is equal to r square is simply x is equal to x naught plus r cos theta and y is equal to y naught plus r sin theta. That's all. Theta is a parameter. Theta is a real parameter. और एक बात मैं बता दूं, अगर थीटा बच्चों, ये थीटा जो है हमारा यहाँ पे, थीटा अगर मान लो 0 से 2 पाई तक ले लोगे तो पूरा कंप्लीट सर्कल मिल जाएगा. अगर थीटा को 0 से पाई, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, वी गेट अ कंप्लीट सर्कल. थीटा बिलोंग्स टू 0 to 4 पाई, वी गेट कंप्लीट सर्कल. अब सुनो, ये सब यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये सब एरियाज का हम लोग तो हर एक एरिया को कवर करते हैं मैथ्स में, कोई भी चीज छोड़ते नहीं है, और इसलिए क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है और हमको पूरा एक जनरल स्टडी करनी चाहिए, कोई भी चीज छोड़नी नहीं चाहिए. वी गेट ए कंप्लीट सर्कल विथ वाइंडिंग नंबर 2. वाइंडिंग नंबर 2 का मतलब 2 बार सर्कल बनेगा. देखो पूरा घूम जाएगा. थीटा 0 होगा तो यहां का पॉइंट मिलेगा. थीटा का पाई बी 2 होगा तो यहां से, थीटा अगर 0 से पाई बी 2 होगा तो ये 1 क्वार्टर सर्कल. थीटा 0 से अगर पाई होगा तो हाफ सर्कल, सेमी सर्कल. थीटा अगर मान लो 0 से लेकर 3 पाई बाई 2 तक अगर है तो ये वाला 3/4 ऑफ द सर्कल, और 0 से 2 पाई तक है तो ये पूरा सर्कल. 0 और 2 पाई गिव्स द सेम पॉइंट. फिर अगर थीटा मान लो जो है 0 से 2 पाई ये, और फिर 2 पाई से 4 पाई, तो फिर दोबारा यानी 2 बार सर्कल बनेगा, वही सर्कल, कंप्लीट सर्कल विथ वाइंडिंग नंबर 2. ठीक है ना. अब इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं. थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, वी गेट और सेमी सर्कल. तो बच्चों ये बड़ा अच्छा है, ये जो पैरामीट्रिक मेथड है, इससे आप एक सर्कल का एक छोटा पोर्शन भी ले सकते हो, सेमी सर्कल भी ले सकते हो, पूरा कंप्लीट सर्कल भी ले सकते हो. तो दिस इज वेरी वेरी यूजफुल, दिस कॉन्सेप्ट. अब बच्चों मान लो ये तो चलो हो गया, इसके बहुत सारे और भी एप्लीकेशन हो सकते हैं. जैसे अगर आपको दिया गया है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस of the circle. Circle is very important. Circle in the Cartesian form when we talked about the radius, and center form when we talked about the general form, that is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus 3 is equal to 0, and circle in parametric form, and circle in the complex form, which I have already discussed. So find the center and radius of the circle. X is equal to 3 plus 2 cos theta and y is equal to 4 plus 2 sin theta. Solution: x minus 3 whole square plus y minus 4 whole square is equal to 4. This is the circle. Just eliminate theta and get the equation. तो यहां से बच्चों आ जाएगा सेंटर कितना आ जाएगा 3,4, और रेडियस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि इसको 2 स्क्वायर ले सकते हो. थोड़ा सा चेंज करोगे, what does x is equal to 3 plus 2 cos theta, y is equal to 4 plus sin theta represents theta belongs to r. तो बच्चों आप देखो थोड़ा सा हमने चेंज किया उसी को. अब ये सर्कल नहीं रहेगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहां से क्या होगा x minus 3 whole square, x minus 3 by 2 whole square plus y minus 4 whole square is equal to आ जाएगा यहाँ पे 1. And this is not a circle. This is not a circle. This is not a circle. And we will see later. Yes, it is a ellipse. तो देख दो ना, यहीं से ellipse भी डिफाइन हो जाएगा इसी पैरामेट्रिक इक्वेशन से. तो इसलिए this is going to be very very important, this concept.
क्योंकि बच्चों अगर यहाँ पे थीटा को चेंज करोगे ना, अगर यहाँ पे थीटा को देखो, ये सोचने में कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि थीटा को 0 रख लो तो एक्स और वाई एक आएगा, फिर थीटा को पाई बाई 2 रख लो फिर एक्स और वाई आएगा, एंड इन दिस वे यू विल गैदर अ लॉट ऑफ पॉइंट्स एंड दोज पॉइंट्स आर नॉट गोइंग टू लाई ऑन ए सर्कल। ठीक है ना? अच्छा, अब ये तो हो गया कुछ बेसिक बातें। अब बच्चों फिर से हम आ जाएंगे और हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और यू कैन से इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। वेरियस केसेस एंड कॉमन टेंजेंट। ये हेडिंग थोड़ी सी अच्छी लग रही है, कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती हैं बच्चों। ठीक है ना? तो देखो, ये जो है हमारा जो है इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, वेरियस केसेस एंड कॉमन टेंजेंट्स। तो बच्चों हम लोग धीरे धीरे जो है सर्कल के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चों, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड you could think why I am discussing why I'm discussing the parametric form just immediately before the intersection of two circles. So there is a reason for that. तो बच्चों दो सर्कल आपको दिए गए हैं, मान लो you have been given two circles. तो बच्चों इनका इंटरेक्शन कैसे जानोगे? तो देखो, अगर ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, मान लो ये s है, और ये बच्चों मान लो s डैश है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश x प्लस 2f डैश y प्लस c डैश इक्वल टू 0। तो बच्चों ये बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पे ये पता करना कि ये दोनों सर्कल, अगर मान लो देखो लाइन और सर्कल को तो आपने बड़ा आराम से देख लिया था कि ये बच्चों ये सर्कल है और ये लाइन है, मान लो लाइन है मान लो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, या लाइन मान लो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, और ये सर्कल मान लो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये सर्कल है मान लो, और यहाँ पे एल एक्स प्लस एम एक्स प्लस डी कर दो क्योंकि यहाँ पे सी आ चुका है। तो इस सर्कल का और इस लाइन का इंटरसेक्शन आपने कैसे देखा था? इस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस डी को यहाँ पे रख दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ एम एक्स प्लस डी प्लस सी इज इक्वल टू 0। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट वुड बिकम फॉर श्योर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसको इसमें कन्वर्ट होना ही होना है, और ए इज नॉट गोइंग टू बी 0 बिकॉज देखो ए क्या होगा, ए इनफैक्ट होगा 1 प्लस एम स्क्वायर, and this is never going to be 0. So this is always a quadratic equation, always a quadratic equation, and this quadratic equation will have two roots, say x1 and x2. x1 को यहाँ पे रखोगे, इस लाइन में पुट करोगे x1 को तो y1 मिल जाएगा, तो x1 कमा y1, और इस x2 को यहाँ पे पुट करोगे तो आ जाएगा x2 कमा y2। It means a line and circle intersect at 2 points maximum। अगर इस इक्वेशन के दोनों रूट्स रियल हैं तो बच्चों दिस सिचुएशन, इसके दोनों रूट्स अगर मान लो जो है इक्वल है और रियल है तो ये ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगा। और इसके दोनों रूट्स बच्चों रियल नहीं है तो दिस लाइन एंड दिस सर्कल इंटरसेक्ट एट इमेजिनरी पॉइंट। यहीं से ये वर्ड आता है इमेजिनरी, क्योंकि इसके रूट्स इमेजिनरी है। तो आपने देखा कि एक लाइन और एक सर्कल अधिकतम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से ज्यादा नहीं। बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिचुएशन फॉर टू सर्कल्स? तो अब बच्चों, अब आप देखो मैथमेटिक्स में बच्चों हर एक चीज को इक्वेशन के थ्रू डिस्कस करनी होती है, आपको पता है, इंट्यूशन के थ्रू नहीं। वी कैन नॉट बी ड्रिवन बाय आवर इंट्यूशन। आवर इंट्यूशन हैव you can say importance, but we will have an intuition so that we could freely think and freely generate ideas. But as far as picking those ideas is concerned, we will go mathematical. We will become mathematical, and then we will verify and we will pick those ideas which were generated as a result of intuition. तो आप सिंपली ये बच्चों नहीं बोलने जा रहे हो जो गलत हो जाएगा
कि अगर दो सर्कल दिए गए हैं तो ये तो सर दिख रहा है कि ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। नहीं, ये सब नहीं चलता है कि दिख रहा है। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि दो सर्कल अगर दिए गए हैं तो उनके बीच में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, प्रोवाइडेड दी टू सर्कल्स आर हैविंग अनइक्वल रेडियस। देखो, अगर दोनों का रेडियस इक्वल है और दोनों को कंसेंट्रिक सर्कल है तो दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे तो इनफाइनेटली मेनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं व्हेन वी हैव टू डिस्टिंक्ट सर्कल कैन नॉट इंटरसेक्ट एट मोर देन 2 पॉइंट्स। हाउ कैन यू से दिस? आप यहां से नहीं बोल पाओगे। और कंडीशन क्या है उसकी? व्हाट इज द कंडीशन? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। इफ आई टॉक अबाउट द IIT क्वेश्चन, IIT हैव आस्क्ड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग। जैसे यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक सर्कल एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पे, तो यहीं से निकलता है वो कॉन्सेप्ट। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, और ये कंडीशन मैंने निकाला था, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फॉर a सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। ये सब हमने निकाला था और उसका एक शॉर्टकट भी बनाया था कि सिंपली सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो और इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होनी चाहिए वो रेडियस ऑफ द सर्कल से कम होना चाहिए। और यहाँ से आप कंडीशन आप this line intersecting the circle at two distinct points you could very easily get. But what is the condition that two circles are intersecting at two distinct points? And what is the condition that the two circles are touching each other? What is the condition that the two circles are touching each other from inside, from outside? ये सारा कुछ बच्चों जो बिजनेस है वो इंट्यूशन ड्रिवन तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो मैं आपको जो है, हालांकि मैं पूरा इसको एनालाइज नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि ये पूरा इसको एनालाइज करने के लिए हमें चाहिए कम से कम 1 घंटे। तो मैं थोड़ा मैं काम करूंगा और थोड़ा आप काम करेंगे घर पे, तो इससे हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों? तो देखो क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू बच्चों, हम सर्कल को ले लेंगे थोड़ा सा। देखो अगर, अच्छा एक चीज और, थोड़ा चलते हैं एलजेब्रा की तरफ। अगर यहां से बच्चों में y को, अगर मैं चाहता हूं कि दोनों सर्कल कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं मैक्सिमम, तो मुझे क्या करना चाहिए? एक काम मैं कर सकता हूं, वो काम ये कर सकता हूं बच्चों कि मैं यहां से s माइनस एस डैश निकाल दूं। तो ये आ जाएगा यहां से 2g माइनस जी डैश x प्लस 2f माइनस एफ डैश y प्लस c माइनस c डैश इक्वल टू 0, which is a line? Which is a line if g is not equal to g dash and f is not equal to f dash? It means the two circles are not concentric. Concentric होगा तो ये लाइन नहीं होगा। और यहां से y को निकाल करके बच्चों देखो, सुनो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां से y को निकालो। देखो ये जो सर्कल है और ये जो सर्कल है अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो एक कॉमन कार्ड जरूर होगा और वो कॉमन कार्ड यही होगा। अब आप चाहते हो कि वो बच्चों जो है 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां से जो y निकलेगा बच्चों उस y को यहां पे रखोगे तो ये x में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। और क्वाड्रेटिक बनेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये तो प्रूव कर दिया आपने, मैक्सिमम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। लेकिन व्हाट शुड बी द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन दैट टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स? वो यहां से आपको नहीं निकल पाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एनालाइजिंग, ठीक है ना बच्चों? तो मैं एक इजियर तरीका आपको बताता हूं और वो थोड़ा सा इजी तरीका है, या मतलब ऐसा यहां से भी निकाल सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग। वो इजी तरीका क्या है कि इन दोनों सर्कल्स को ले लो आप बच्चों इस तरीके से, एक सर्कल ये ले लिया और ये सर्कल ले लिया और इसका सेंटर मान लो बच्चों जो है, इसको मैंने ले लिया x माइनस एक्स नॉट, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस आर साइन थीटा। और इसको ले लिया मैंने बच्चों x डैश प्लस आर डैश कॉस फाई एंड y इज इक्वल टू वाई नॉट डैश प्लस आर डैश साइन फाई। यहाँ पे सेंटर है x नॉट y नॉट और इसका सेंटर है x डैश नॉट, ये है, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r डैश है, ठीक है बच्चों? और अगर ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों, आप फॉर इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्कल
or for intersection, what you can say now, x naught अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा? If they are intersecting, if they intersect, x naught plus r cos theta is equal to x naught dash plus r dash cos phi, and y naught plus r sin theta is equal to y dash naught plus r dash sin phi. ये आ जाएगा बच्चों। और यहां से ये एक प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया बच्चों। और यहां से हम क्या करेंगे, x naught minus x naught dash is equal to r dash cos phi minus r cos theta, y minus y dash naught is equal to r dash sin phi minus r cos phi। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन हो गया और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। अब इसको छोड़ देता हूं मैं आपके लिए, थोड़ा वर्क करना। और यहीं से बच्चों हमारी कंडीशन आ जाएगी। अब कंडीशन देखो, कंडीशन यहां पे देखो क्या आएगी। केस 1, two circles do not intersect and डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं। इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। तो बच्चों इनका जो सेंटर है, यहाँ पे जो सेंटर है इसको मान लो C1, इसके सेंटर को मान लो C2, इस सर्कल को मान लो S1, इस सर्कल को मान लो S2। तो देखो क्या होगा, ध्यान से सुनो। इस केस में हम इसको डिराइव कर सकते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन का यूज करके। आप देखो, आपको मैंने एक आइडिया दे दिया, आपको एक बेस बना दिया और यहीं से सॉल्व करके आएगा। इसमें ये भी मैंने बता दिया, थोड़ा बहुत प्रोसीड करना। फाइनली प्रोसीड अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लीव भी कर सकते हो इसको, ठीक है ना। आपको पता तो चल गया ना कि यहीं से सब कुछ निकलता है, तो थोड़ा बहुत कंप्यूटेशन करने के बाद से आ जाएगा। अब देखो C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये बच्चों R1 है और ये R2 है। तो इस केस में क्या होगा, C1 C2 विल बी मोर देन R1 प्लस R2। और ये कंडीशन यहीं से आएगी, ये सारा यहीं से आना है, सारा कुछ यहीं से आएगा। मैं बता रहा हूं। केस 2, केस 2, two circles touch externally। अच्छा, एक चीज मैं आपको साथ साथ में बताता भी चलूं कि बच्चों इस केस में में 4 टेंजेंट्स होंगे, कॉमन टेंजेंट, 4 कॉमन टेंजेंट्स, 4 कॉमन टेंजेंट्स। और इसको बोलते हैं बच्चों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉमन एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इक्वेशन निकालना मैं सिखा दूंगा, बहुत आसान होता है। तो बच्चों when two circles are lying, when two circles do not intersect and one circle is not lying inside the other circle, मतलब दोनों दूर दूर हैं, तो उस केस में 4 कॉमन टेंजेंट, 4 कॉमन टेंजेंट्स होते हैं। और उसकी कंडीशन क्या है, C1 C2 इज मोर देन R1 प्लस R2। ये कंडीशन है बच्चों, यहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। दूसरा केस when two circles are टच इंटरनली। ऑब्वियसली अब नेक्स्ट स्टेज तो यही होगा कि वो सर्कल पास में जा रहा है। अब ऐसे एनिमेट करके मैं आपको समझा रहा था ना, देखो मैं थोड़ा सा और एनिमेशन कर देता हूँ यहाँ पे। देखो ये इस समय 4 कॉमन टेंजेंट हो गए, 4 कॉमन टेंजेंट्स हो गए एंड दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर
and C1 C2 is more than R1 plus R2. Now C1 C2 is decreasing and now C1 C2 is equal to R1 plus R2. और इसमें कोई डाउट तो आपको है नहीं, क्योंकि देखो ये C1 है और ये C2 है और ये R1 है, ये R2 है, तो C1 C2 is equal to R1 plus R2. ये जो बच्चों इंट्यूशन से यहाँ पे रिजल्ट निकाल रहे हैं ना, ये सारा रिजल्ट यहीं से आ जाता है. मुझे बहुत, आई वाज सो एक्साइटेड टू, really I am telling to you, I am very excited to solve this equation and this is a trigonometrical equation. तो इससे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक की भी थोड़ी तैयारी तो हो ही जाती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन पूछ, आपको पता है जो आईडीजे वगैरह में क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये है, यहाँ से एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन बना है, इसी में क्या करें, आप बोलोगे कि सर व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, हम तो सीधे ऐसे रख लेंगे, लेकिन बच्चों आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का प्रॉब्लम यहीं पे x नॉट x डैश वगैरह की वैल्यू देकर के और दे देंगे और बोलेंगे सॉल्व करो. क्वेश्चन बनता कहां से है? जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं और हमको कई बार सरप्राइज करते हैं, दोज क्वेश्चंस आर नथिंग बट while discussing some concepts, those things comes in the way of solving some concept and problem. तो इसीलिए मैं आपको बार बार फोकस करता हूं कि आप अच्छे तरीके से अगर स्टडी करोगे तो चीजें बहुत सिंपल है और प्रेडिक्टेबल है. तो देखो यहां से ये आ जाएगा कंडीशन. अब सोचो कि ये कंडीशन जो अगर यहां से निकलेगा तो वो कितना मजा आएगा, ठीक है ना. और फिर आप बोलोगे कि हाँ ये तो इंट्यूशन से भी कनेक्ट हो गया. अभी तो आप बोलोगे कि इंट्यूशन से ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप बोलोगे मैथमेटिकली ऐसा हम देख पा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है. ये डिफरेंस है बच्चों, ठीक है. तो ये होगा इस केस में. अब इस केस में बच्चों क्या होगा, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा, दिस इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और ये जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट था बच्चों, जैसे जैसे सर्कल आ रहा था, जैसे जैसे बच्चों सर्कल जो है आ रहा था इसकी तरफ, तो ये एंगल जो है क्या हो रहा था, ये एंगल घट रहा था, और घटते घटते बच्चों यहाँ पे ये जो है बन जाएगा, ये है बच्चों ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ही है. लेकिन यहाँ पे टू ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कोइंसाइड हो चुके हैं, दोनों कोइंसाइड कर चुके हैं. तो दिस इज बच्चों S1 minus S2 equal to 0 also. This is the equation of transverse common tangent. और दोनों जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट थे ना, जो ऐसा बन रहा था, वो जैसे जैसे सर्कल पास में आएगा तो वो ऐसे ऐसे होता चला जाएगा और फिर फाइनली ये कोइंसाइड कर जाएगा. ये इसकी जर्नी है, ठीक है ना. तो इस केस में 3 कॉमन टेंजेंट्स, 3 common tangents, 2 direct common tangent and 1 transverse common tangent. Case 3. That is very important. The circles intersects at 2 distinct points. और इस पे क्वेश्चन तो आ ही चुका है और बाकी केसेस पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं. ये क्वेश्चन तो पूछा गया आईआईटी में, ठीक है ना. न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बच्चों. आज आप जाकर के विजिट करोगे, अब आप स्टडी मटेरियल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है उसको विजिट करोगे तो आपको उसमें क्वेश्चन दिखेगा बच्चों. मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है और मेरे सामने दिख रहा है, लेकिन कई बार मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि फिर ये छूट जाएगा. तो टॉपिक 2 है बच्चों, टॉपिक 2 रिलेशन बिटवीन 2 सर्कल्स का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, दैट इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन द कांसेप्ट व्हिच आई एम डिस्कसिंग. तो मैं बच्चों यहाँ पे जो डिस्कस कर रहा हूँ यहीं से क्वेश्चन हो जाएगा. तो दिस इज द सिचुएशन. इन दिस सिचुएशन बच्चों, what would happen, this is the first circle, this is the second circle center. C1 C2 का बीच जो C1 C2 का जो लेंथ होगा बच्चों वो R1 प्लस R2 से कम होगा. लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अभी मैं आपको बताता हूँ. केस 4 से आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ इसको. केस 4, 2 सर्कल्स टच इंटरनली. तो इस केस में बच्चों जो हमारा जो सिचुएशन बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा और ये जो है सर्कल टच कर रहा है. तो जब बच्चों सर्कल टच करेगा तो आप बहुत आराम से देख सकते हो, एक चीज तो देख ही सकते हो कि ये जो बच्चों सेंटर है इसका और दूसरे सर्कल का सेंटर ये है C1 C2. तो ये जो C1 C2 होगा, देखो यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस तो कितना है, R1 है और ये R2 है. तो C1 C2 विल बी इक्वल टू R1 माइनस R2
और मॉड लगा दो, क्योंकि हमें क्या पता R1 R2 से बड़ा है या R1 R2 से छोटा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्टेज कैसे मिला होगा, ये स्टेज मिला होगा कुछ इस तरीके से, ये सर्कल ऐसे जा रहा होगा और जाते 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 C1 C2 R1 माइनस R2 के इक्वल हो गया, लेकिन इसके पहले क्या होगा, C1 C2 R1 माइनस R2 से बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये बड़ा होगा R1 माइनस R2 के मॉड से। ये होगा when the two circles are intersecting at two distinct points. This is the case, keep in mind. और बच्चों इस केस में जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा वो तो यही है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, टू कॉमन टेंजेंट्स, और वो दोनों होंगे DCT, नो TCT। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज नो लॉन्गर अवेलेबल। और इस केस में बच्चों ये है हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो एक सिंगल, और फिर ये S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 हो गया, नो TCT। एंड दिस इज द केस व्हेन C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 का मॉड, व्हेन टू सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर। और बच्चों अब केस 5, और ये सारा कुछ केस बच्चों वन सर्कल लाई इनसाइड अदर। तो बच्चों इस केस में क्या होगा, C1 C2 विल बी लेस देन R1 माइनस R2 का मॉड, एंड इन दिस केस this is the situation, C1 C2 can be 0 also। ठीक है बच्चों, और इन दिस केस नो कॉमन टेंजेंट्स। तो बच्चों यहां पे देखो नंबर ऑफ टेंजेंट्स 0, नंबर ऑफ टेंजेंट्स 0, यहां पे नंबर ऑफ टेंजेंट्स 1, यहां पे नंबर ऑफ टेंजेंट्स 2, यहां पे नंबर ऑफ टेंजेंट्स 3, यहां पे नंबर ऑफ टेंजेंट्स 4, 1 2 3 4 0। ये हमारा सारा केस है। और बच्चों एज फार एज फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट इज कंसर्न्ड, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं बच्चों, वो ध्यान रखना आप के लिए एक बच्चों, हाँ एक क्वेश्चन है, होमवर्क की तरह इसको ले सकते हो। फाइंड द 4 कॉमन टेंजेंट्स, फाइंड लिखो इसको, फाइंड द 4 कॉमन टेंजेंट्स, find the 4 common tangents to the two circles, to the two circles 5x square plus 5y square minus 22x। ये बच्चों क्वेश्चन इसलिए मैं आपको ये स्पेशली दे रहा हूं क्योंकि इसमें कंप्यूटेशन कम होगा और कॉन्सेप्ट सारा सीख जाओगे आप। रैंडम कोई भी सर्कल अगर मैं ले लूं तो उस पर कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा और सारा आप उलझ के रह जाओगे कंप्यूटेशन में। और ये आ जाएगा जो 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 22x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। बच्चों कॉन्सेप्ट ये होगा कि आप ले लेना y इक्वल टू mx प्लस c कोई सर्कल है जो इस पे टेंजेंट है, तो यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देना। क्या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है बच्चों, कंडीशन ऑफ, अच्छा एक चीज मैं आपको और बताता हूँ बच्चों, हाँ यहाँ से तो आप पहुंच जाओगे, कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट और यूज कर लोगे तो थोड़ा आपका काम आसान हो जाएगा। और वो आसान क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये जो सर्कल है C1 C2, सॉरी ये सेंटर C1 है और सेंटर C2 है, यहां से ये जो दोनों कॉमन टेंजेंट्स हैं बच्चों वो जाके जिस पॉइंट पे मिलेंगी वो इस लाइन सेगमेंट C1 C2 को, ये जो पॉइंट P होगा वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, C1P रेशियो C2P विल बी इक्वल टू R1 रेशियो R2। ये प्रूव करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। और ये जो इंटरनल जो होगा बच्चों यहाँ पे जो टेंजेंट है ये मान लो बच्चों Q है, तो C1Q रेशियो C2Q विल बी आल्सो इक्वल टू R1 रेशियो R2। तो बच्चों ये जो दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, दोनों सर्कल की जो सेंटर ज्वाइन करने वाली लाइन है उसी पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं और इंटरनली और एक्सटर्नली सेम रेशियो में करते हैं बच्चों, सेम रेशियो में। सेक्शन फार्मूला आप जाके घर पर अच्छे से रिवाइज करना, सेम रेशियो में। और
तो इसका बच्चों कोऑर्डिनेट निकाल लेना, इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेना, और इसका कोऑर्डिनेट निकालने के बाद से आप एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालना जो इस पॉइंट से पास हो रही है, और इस पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, बस एक सर्कल पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दो, दूसरे पे लगाने की जरूरत ही नहीं है। और ये बात अगर नहीं जानते तो दोनों पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाल करके भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आई थिंक बच्चों आप समझ गए होंगे मैं क्या अच्छा, इसकी लेंथ भी हम निकाल सकते हैं। दिस इज नोन एज द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड दिस इज नोन एज द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और ये दिस इज नथिंग बट सिंपली अप्लाइंग, यू कैन से और ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने पे ये लेंथ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा थोड़ा ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, परेशान मत हो। लेकिन अभी मैंने सोचा है कि आप थोड़ा खुद से थोड़ा थिंक करना स्टार्ट कर दो, तो मजा तभी आता है जब आप भी सोचते हो, जब आप भी 2 कदम चलो और फिर मैं भी 2 कदम चलूं, टीचर और स्टूडेंट मिल करके काम को करेंगे, देन देयर वुड बी अ मैक्सिमम फन एंड लर्निंग। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।